tried to see all kinds of conjugations of the verbs in preterito, indefinido. Yes, sir. Today we will be doing a very important part of grammar. Okay, we will be actually trying to understand use of direct object pronouns and indirect object pronouns. Okay. Okay, and when you go for shopping, when you are writing anything, direct object pronouns and indirect object pronouns are very अभी नहीं मैं important, चेक very कर very सकती हूँ. important. Yes, sir. Good evening, Sima. How are you? Hello. Hi, Sima. Can you hear me, Sima? Okay. So, uh, I think we can begin our class now, right? Yes, sir. Yes, sir. So, let me share my screen with. Is it visible to you, Vinoy? My screen. I'm not able to hear you, Vinoy. Yes, sir. It's visible, Huh? sir. Yeah, Huh, it's huh. visible. Okay. Great. Fantastic. So, can you read like whatever is written on my screen? Yes, sir. The object that directly receives the action of the verb is called the direct object. Ram reads the book. Ha Book. ha ha. Just a minute, Vinoy. Yeah. So basically, we will be studying about DOP. DOP is direct Object. object Proverb. Sir. pronoun. Pronoun. Okay. All of you can see my screen, right? Uh, Yes, 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 I. uh, is Sima there? Okay, Yes, Sima sir. has left. Yes, I Okay, joined. okay, okay, okay. How are you, Sima? I'm Fine. fine, sir. I'm fine, sir. Okay. You had given yesterday some homework. Hope, Yeah, maybe, yeah, 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 yeah. right? Sima, like I was telling Vinoy that today we will be discussing about direct object pronouns and indirect object pronouns. Okay, 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 sir. and this forms part of your one of your chapters in BSL 002, and this is Okay, very important to understand correct use of direct object pronouns and indirect object pronouns. Okay, okay, sir. because in the subsequent chapters you will always find that in the book that all the paragraphs that are written in Spanish, they will mention their direct object pronouns and indirect object pronouns. Okay, sir. So here, so I've tried to prepare something for all of you. Uh-huh. So direct object pronouns. So that object that directly receives the action of the verb is called direct object. Okay, Okay. okay. So like Ram reads the book. Okay. Ram reads the book. So what is verb here? What is the verb in this Reads. sentence? Reads. Read. And the action of that verb read is falling directly upon whom? Ram. On the book. On the book. Okay, so the book receives the action of the verb read. Read. Okay, so is this clear? Okay, so like in a sentence, whichever object will receive the direct action of the verb. Okay, I eat mango. I eat mango. So here the verb is eat, and what I am eating? I am eating mango. So mango is direct object here. Okay, so again, let me share my screen. Ram hit the cricket ball. So Ram hit cricket ball. So which is direct object here? Can anyone tell me?
Which is direct object here? Object. Anyone? You can Cricket take. ball. The ball. Ram hit the cricket ball. Cricket ball, sir. Cricket ball. Very good. Because the action of the verb Hitting. hitting is falling on the cricket ball, Cricket directly ball. on the cricket ball. Hmm. Okay. So in the first two examples, you all will see that in the first two example, direct object is book and cricket ball. Cricket But ball. it can also be person. For example, Ram Ram hit hit Mohan. Mohan. So here direct object is Mohan, Mohan. Mohan. because the action of the verb is falling directly on Mohan. Mohan. Okay, so generally in a sentence, if we want to find out which one is direct object and which one is indirect object, so for direct object we will ask question like what and whom. Okay, whom does Ram hit? Ram Whom hits does Mohan. so Whom. Mohan. Whom. Mohan. So Mohan is our Object. direct object. Direct object. Okay. Yes. Often we replace the name of direct object with a pronoun. Okay. So generally we do not in a sentence we try to omit direct object. Okay. And in place of direct object we use certain pronouns. For example, these are direct object pronouns. These you can note them down. Me, te, lo, la, nos, os, los, las. So yo, for yo it is me. Okay. For first person singular it is me, and then you can just see these direct object pronouns are very important, because now you will see that slowly we will start replacing direct object with these pronouns. Okay. La. Huh. Nos. Os. Nos. Los. Las. Sir, you will be sending these Yes. notes. I will be sending you these notes. Email, na? Email. Uh-huh. Okay, sir. Okay. So in an affirmative statement with one verb, so when there is only one verb in the sentence and the statement is affirmative statement, okay, the direct object pronoun comes immediately before the conjugated verb. For example, what is the meaning of tango? What is the meaning of Have. tango? I have. Right? Hmm. What is the meaning of tango? I I have. have. Again, in the second sentence, you will find it is written tengo la pluma. Okay. Tengo la pluma. Pluma. So, what does I have? What do I have? I have the pen. I have the pen. The pen. Exactly. So, which one is direct object here? Pluma. Pluma. Pen is the direct object. Huh. And here you will see pluma is masculine or feminine. 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 That is a la pluma. So for pluma is. Sir, Hello? when we use bolígrafo, then it becomes masculine. Bolígrafo is masculine. I will give you those examples. also. El bolígrafo. So I have just started the class now. So I will give you all kinds of examples in the Yes. class, so that you won't have any doubt. Okay, so tengo la pluma. Okay, so la pluma. So here our direct object is feminine. So here we will see in the chart that for direct object third person singular, and if that third person singular is feminine, we will use la. Okay,
Are you able to understand? Hello. Third person, for third person la we'll using. Because it is feminine. If Feminine. for masculine सर फिर direct से एक बार object. बताइए सर, हाँ हाँ फिर से रिपीट कीजिए ना एक बार. हाँ, एक मिनट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग देखिए, टेंगोला प्लूमा. टेंगोला प्लूमा का मतलब क्या हुआ? आई हैव I द पेन. have the आई pen. हैव द पेन. Pen. सो हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है यहाँ पे? Direct object is pluma, la प्लूमा, pluma. ला प्लूमा सर. ला प्लूमा. सो जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है ला प्लूमा. यही है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. ओके, हाँ सर. ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. तो हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, जो अंडरलाइन किया मैंने अभी, वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है? फेमिनिन सर. Feminine. फेमिनिन है. सो अब आप हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि इफ द सेंटेंस इज अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके, इफ द स्टेटमेंट इज अफर्मेटिव स्टेटमेंट, सो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन विल कम बिफोर द वर्ब. ओके, सो हम लोग अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के जगह हम लोग, सॉरी, इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह हम लोग प्रोनाउन यूज कर सकते हैं ला. ला ला टेंगो. टेंगो. तो उसका मतलब हो गया हाई, आई हैव इट. ओके, समझ रहे हो ना? आई Yes. हैव इट. हाँ सर. हाँ. तो la tengo. So instead of saying tengo la pluma, I can say la ला tengo. टेंगो. Okay, आई हैव इट. I have it. So here we have replaced direct object with a pronoun, with a direct object pronoun, which is So, la la. pluma itself is replaced with la. La. ला. La pluma gets replaced with la. Okay. So are you able to understand it? So in an affirmative sentence, Hmm. direct object pronoun will always come before the verb. Okay, before the conjugated verb. Like Fine. sir, someone is asking who has the pen, then So, we can just say la tengo, I have it. I have it because it from the context, because you must be sitting in the same room. That's why you are asking someone. Yes, So from the I have it. context, it will be clear that what does that it mean there. Hmm. है ना? Because from the question, because somebody is हाँ. asking you about the pen. So Who when you has say the pen? that, who has the pen? So when you are replying, I have it. So you from that context, it becomes very clear that it refers to pen. Hmm. Okay. So la tengo. La tengo. Okay. Similarly, Ram tiene la pluma. For example, Ah. Ram tiene la pluma. So Ram has the pen. so it will become Ram la tiene. So it will come here after the subject. It generally when subject is in the last sentence, the subject was not clear there. Okay, Yes. it was implicit, but here it is not implicit. It is given there. It is explicit there. Ram tiene la pluma. Okay, so Ram la tiene. Ram has the pen. Ram has it. Has it. Ram has it. Okay. For example, Ram has the book. Tell me, what should I write here? How I will write this using direct object pronoun? Same, no, sir. Ram la tiene. Okay. So book is what? Book Book is is the object. Book is the direct object. object. Direct object. Direct Not the object. object. Direct object. Direct object. But it is el libro. El libro. So tell me, what should I write here? El Ram? Ram el libro. No. Lo tiene. Ram lo tiene. Instead of la, it will be, it is a masculine, so it will be lo tiene, not Lo la tiene. tiene. From as you It is a can masculine. see, as you can see here from the chart, that for masculine third person singular we will be using Lo. So I have written there Ram lo tiene. That's the pen. Clear? Yes. Okay. For example, here Ram has the books. Ram los what- tienes. Ram los tiene. Ram Los los tienes. Los tiene. 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 Tiene.
TNA. TNA. Why were TNA. you using Sima TNS? Because Uh, verb will be conjugated according to yes, Ram. yes, Okay, na Ram is third yes, person yes. singular, so the third Huh. person singular of verb tenere is TNA. TNA. Okay, I'm just confusing with the adjective. It has to no, no, be no, no. plural, made plural. So See, this is our direct object, the book. The book is our direct Direct. hmm. object. So the book is our direct object. And the verb will be conjugated according to the subject. Okay. Yes, sir. If it is written Ram has the red books, then it will be Ram los Nahi, red is don't Rokhos. no, don't get confused. I will first to try to understand this. Hmm. Okay. Is there any problem in understanding this? No, 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 sir. Okay. not clear. Ram los TNA. Okay. For example, Ram tiene dos libros. So this can be written as Ram tiene dos libros. He Ram has two has books. two Two books. books. Two books. So if I have to rewrite this sentence using direct object pronoun, I will write it like this: Ram los Los, TNA, los tiene. TNA. Tiene. TNA. Okay, just this. Fine. Because because if he has two books, then that means that we will be using los. Los. We will be using los Los. because it is Los. third person plural. Because Los. there are the object, the direct object is in plural. Plural. Okay, so we will be using los there. Okay, Yes. fine. Yes. Able to understand this? हाँ sir. हाँ sir. Yes. Thank you, sir. Similarly, there are these certain phrases. Na, I know you. I know you. Te conozco. Conocer. Conocer is to know. So, te conozco. Okay. Te conozco. She loves him. She loves him. Ella lo llama. Ama. Ella lo ama. Okay. Yes. Why low here? In this sentence, I know you. Which one is direct object? You is a direct object. Very good. Because the verb know, the action of the verb know is directly Is falling on you. 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 So here you becomes our Stay. direct object. You Object. becomes our direct Object. object. So here you will be replaced by te. Stay. Okay. Te conozco. And I know is to conocer. Conocer is to know. So conjugation of conocer in your form is conozco. Okay. So are you able to understand this? For example, she loves him. Which is direct object here? Loves. Him. 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 Him is direct object here. So him will become Him will become low. low. Lo ama. Very good, very good. Even if you don't write Asia, it can work. Low ama. Lo But ama. but because it is written here, she loves him. So to make things clear, you can write Aya lo ama. Aya Aya means she, sir. she. Exactly. Okay. For example, she loves me. Which one is Aya direct me object ama. here? Me Ama is is object. actually right, sir. Me is direct object. Very good. Me Therefore, ama. Aya me ama. Me ama. Very good. Me becomes me. Me. For yo, Joe. It's Here, me.
Seema, you can see Yes. here. For me, it was May. Me. Yes. Okay, Yes. it was here yes. May. Correct. Kwan Kwan, La Wei. Kwan Kwan sees sees her. Is her. Her is a direct object. Her is So here her will direct become object. la. La. Kwan La She Wei. will become way. Okay. One la way. La Wei. Yes. They call us, which is direct object here. Call her. Us. 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 Call Us. to verb है Calling ना? is the verb. हाँ, अच्छा. हाँ. हाँ. Nose, So, So nose. nose Yaman. It is a Nose. plural. हाँ. First person plural. So nose. Nose. Exact. Eos nose Yaman. Yaman. Because here the verb will be conjugated according to Ayos, so it will become Yaman. Yaman. Okay. We call them. Again, the direct object is here them. 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 Them Them is will become los. Los Yamamos. those Yamamos. Yamamos. Very good. So, were you all able to understand this? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Any problem? No, sir. No, No problem, right? No. no, sir. sir. So here in the book. Now, can anyone read this? Sir, Object pronouns. this is sir which number? Object pronouns number. Okay. October. Okay. This is page number página número 75. 75. Actividad. Observer. Yes, Object object pronouns. Hey, in sir, can I start reading? हाँ. Please. In both the dialogues, Actividad 6, Actividad 6 and Actividad 8, we have used object pronouns. Remember that verbs in Spanish has two complements, direct object and indirect object. In order to avoid unnecessarily repeating the direct or indirect object of a sentence, we replace it with a pronoun, also known as DOP and IOPs. The construction of DOP and IOP in Spanish is different from English. Let's see how the direct object pronouns function. First is direct object pronouns. Direct object refers to the person, animal, or thing and usually needed by transitive verbs. We can easily identify the DO by asking the verb K. K means what, or Akien means to whom. What or to whom? That is the object to which the action is being done in a sentence. Okay. For example, Okay. So this is very important. Hmm. The object to which the action is being done in a sentence. Okay. So this is very important, right? So here you can presentation see. दिख नहीं रहा सर. Okay. मेरा स्क्रीन नहीं बार दिख रहा है. Okay, let me share my screen. माफ कीजिए सीमा जी. No problem. I have taken printout, no, because from the screen I cannot read, eyesight problem. So I have taken printout. I'm reading from the book. ठीक है, मेरे पास बुक Okay. नहीं है सीमा जी, इसलिए मैं ऐसे देख रहा था. Okay, no issues. Okay. मेरे पास एड्रेस मेरे पास जो सॉफ्ट कॉपी है पर पढ़ने का बहुत मुश्किल है, इसलिए Yes, screen same में- thing for me. तो आप लोगों को तो मिला होगा ना ये बुक. हाँ मिला है नहीं, सर, सर। पर बुक बहुत soft छोटा copy है मिला सर. है। ना अच्छा, soft फोन में सॉफ्ट कॉपी बहुत छोटे प्रिंट्स है. बहुत, हाँ, तो बहुत ये सर। थोड़ा बड़ा है, आंखों के लिए अच्छा है. ओके. तो आप यहाँ पे देख सकते हो आप लोग जो busco un abrigo de invierno. Okay. Abrigo is coat. Okay. Coat, yes. हाँ. So what I am searching? Ask is que busco. Buscar. हाँ. Yo busco. तो busco is to search. Search. हाँ. What I'm Buscar. searching? I'm searching search- a coat. Un abrigo de invierno. So it is un. Un is for One. masculine. Masculine. Yes, A. So here the
if I want to say this using object pronouns, direct object pronouns, I will say lo busco. Lo busco. You can see it here on my screen. Lo busco, right? No, उसको. ये क्लियर हुआ ना आप लोगों को? सेम है जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, वही उसी को मैं इस बुक में भी जो एग्जांपल्स है उनको क्लियर कर दे रहा हूँ. तो आप लोगों को ये समझ में आया ना? Yes. हाँ सर. Yes, sir. Clear. क्लियर है ना? हाँ सर. यहाँ पे आप ये चार्ट भी देख सकते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल में ते लो ला नोस ओस लोस Los लास. las. ओके. हाँ, यूजली द डीओपी इज प्लेस्ड बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब. ये भी मैंने बता दिया आपको कि डीओपी इज जनरली प्लेस्ड बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब, है ना? जैसे कि हम लोगों का यहाँ था, द कॉन्जुगेटेड वर्ब वाज फॉर एग्जांपल इन द लास्ट यामामोस. Okay, so we will place DOP before it. Los. Los is here DOP, direct object pronoun. Okay. Clear है ना आप लोगों को? Yes, sir. हाँ. No, उसको. हाँ. For example. Share again my screen. So अब negative अभी we were looking at all the sentences. Affirmative. हाँ, we were looking at affirmative sentences, but now we will take a look at negative sentences. So in a negative sentence with one verb, the direct object pronoun is placed between negative word and the conjugated verb. Okay, for example, for affirmative it was Ram buys the books. So Ram los compra. Ram los compra. Comprar. Comprar is to buy. Bye. Okay. Okay, Yes. it is comprar is to buy. So Ram los compro. And if I want to say Ram does not buy the book, so Ram no los compra. Los. Compra. अगर यहाँ पे if we will put no between los and compra, between direct object pronoun and the verb, then our sentence will become wrong. Okay, we cannot write Ram los Los no compra. no compra. This sentence will be completely wrong. Completely wrong. Okay. Yes. So the correct sentence will be Ram Ram no los Compra. compra. Okay, Yes. this will be correct sentence. Got it? Yes, sir. Clear. बाकी सबको भी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Sí, और- señor. muy bien. और कौन कौन है आप लोग क्लास में आज? विनोय, आपको क्लियर हो गया ना? सर. हाँ सर. हाँ. ओके. Excuse me, sir. हाँ. यहाँ बुक में एग्जाम्पल में जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, उसमें प्लूरल में नोज को यू ऑल क्यों लिखा हुआ है? कहाँ पे? लेट मी. इट शुड बी वी ऑल ना? एक मिनट, मैं बुक देख रहा हूँ अभी. हाँ जी. पेज 75 सर. हाँ हाँ हाँ, एक मिनट. जो बॉक्स में है प्लूरल और एग्जांपल्स है नोज. हाँ, तो वो nose- टाइपिंग एरर लग रहा है. यू की जगह पे वी होना चाहिए. हाँ, वी ऑल. हाँ. या सर को अच्छा. देख लेने दीजिए. ऐसे से कंफ्यूजन होने लगती है बिकॉज़ Correct ना, sir? न्यू फॉर अस. Okay. There is some problem with my screen.
ओके ओके जस्ट 75 का लास्ट वाला कॉलम। यू ऑल यू हाँ ऑल हाँ हाँ यू हाँ हाँ यू सेकंड पर्सन हो जाता है तो यू नहीं होना चाहिए, भी होना चाहिए। Yeah, it should be we all. हम्म, And same thing is on the page 76 also. हाँ वहाँ पर भी वही कॉपी पेस्ट किया हुआ है। We all, yeah. एक बार ओके सर भी, ओके ओके सर ओके करेक्ट है ना? हाँ 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 मैंने यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए जो ये वाला मैंने बनाया है इसलिए मैंने ये बना दिया है। इट इज नोस अस होगा ओके यू ऑल नहीं होगा यू ऑल फेमिलियर और यू हाँ ऑल फॉर्मल तो ओस और लोस और लास होता है ना इट विल बी अस देयर बेसिकली। अस इज बेटर। तो यहाँ पे हम यू ऑल को कट करके यहाँ पे भी अस कर देते हैं। हाँ 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 सो निगेटिव सेंटेंसेस का भी आप लोगों को हो गया है ना समझ में आ गया ना कि हम लोग नो के Yes. बाद हमेशा लगाएंगे यस। ओके ये अंडरस्टैंडिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप लोग जब जो पैराग्राफ्स पढ़ेंगे जो चैप्टर्स में आने वाले चैप्टर्स में वहाँ पे ये फ्रिक्वेंटली यूज होगा ओके और आप लोग को घबराना नहीं है कि लोस क्या है ला क्या है बल्कि आप लोग को कंटेक्स्ट से खुद पता चल जाएगा ओके कि किसके बारे में बात हो रही है लोस वहाँ पे क्या है ओके जैसे राम siempre lo estudia राम ऑलवेज स्टडी इट ओके सो ये siempre और nunca के साथ इसका यूज ओके राम siempre lo estudia siempre is always ऑलवेज। okay so ram always studies it और राम nunca lo estudia राम never studies it कभी नहीं पढ़ता। हाँ उनका मीन्स नेवर। never तो ये मतलब एंटोनिम्स हो गए, सिएम्प्रे उनका। हाँ एंटोनिम्स हो गए सिएम्प्रे उनका। हाँ ellos नोस कोनोसेन इसका मतलब क्या होगा ये आप लोगों के लिए है टेल मी हाउ यू विल ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश They know us and they don't know us. वेरी गुड conocen, हाँ। वेरी गुड आप They बाकी know लोग us, they don't know us। हाँ क्योंकि एयोस दे हाँ, they conjugate and therefore the verb conocer to know is conocen, conjugate हाँ। conocer to know is conjugated according to AO's subject okay and knows is direct object here they know us okay and they don't know us ellos no nos conocen। हाँ बिनॉय आपको समझ में आया हाँ, बिनॉय आपको समझ में आया ये चीज समझ में आया सर, समझ में हाँ आया। बाकी सारे लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बोलना बीच में ठीक है yes, ठीक yes, है आप sir, सर, yes। ठीक है, रोक सकते हो It's clear, sir. It's clear now. Yeah. Muy bien, sir। मेरे भी। सो देखो नेक्स्ट इन सेंटेंसेस विद टू वर्ब्स जहां पे दो वर्ब्स होंगे ओके देयर आर टू ऑप्शंस रिगार्डिंग प्लेसमेंट ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस अभी तक हम लोग जितना भी देख रहे थे वी वर ओनली डीलिंग विद सेंटेंसेस which were having one verb okay now we will be seeing sentences which have more than one verb hello okay so for example ram wants to buy it okay so ram wants to buy it so which is direct object here it it our direct object is it एक it direct object पर is पर तो सर तो सेकंड और फर्स्ट वर्ब है, दो वर्ब्स हैं तो कौन सा वाला वर्ब? हाँ ओके वही वही है ना मैं वही समझाने का कोशिश कर रहा और हूँ बाइंग, wanting and buying, two things are going on। हाँ पर वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को
कि अभी तक जितना हम लोगों ने देखा वो एक वर्ब देखा हम लोगों ने, Yes, ओके। yes. सारे सेंटेंसेस में एक वर्ब वर्ब थे। अब यहाँ पे मोर देन वन वर्ब है, तो अगर वो मोर देन वन वर्ब होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे राम वांट्स भी एक वर्ब है, ओके। Need to be एक वर्ब है। इट नीड टू बाय वर्ब है ना, By sir। बाय बाय इट By। तो डीओ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, विनोद। Direct object oh sorry। हाँ By। हाँ, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है विनोय, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। यस ठीक है सर, सॉरी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डीओ सर, डीओ लिख दीजिए शॉर्ट में। हाँ ठीक है, तो राम, तो हम लोग इसको कॉन्जुगेट कैसे करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे राम कीरे, वांट्स का क्या होता है वर्ब, केरेर, केरेर सर। केरेर, वांट का हाँ। क्या होता है वर्ब, केरेर सर। केरेर। केरेर। तो राम कीरे कोम्प्रार, comprar। टू बाय का To क्या want। हो जाएगा, टू बाय का होता है कोम्प्रार, कॉम्प्रार। comprar। ओके। सो राम कीरे कोम्प्रार। अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो या तो सेकंड वर्ब के साथ आ सकता है, या तो आपको उसको आप सेकंड वर्ब के साथ लिख सकते हो, ये भी फॉर्म करेक्ट है सेंटेंस बनाने का, या तो फिर कॉन्जुगेटेड वर्ब तो ये है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्पेनिश में हमेशा पहला वर्ब कॉन्जुगेट होता है। अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब हैं तो सिर्फ तो पहला पहला वर्ब कॉन्जुगेट होता है सेकंड ना? एज इट इज लिख देते हैं। हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। सो Correct. या तो जो सेकंड वर्ब है उसके लास्ट में आप लगा लो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके साथ ही लिख लो, या तो कॉन्जुगेटेड वर्ब के पहले, जैसा अभी तक हम लोग करते आए थे, ओके, या तो वहां लगा लो, दोनों फॉर्म करेक्ट है। करेक्ट है, या तो पहले और या एंड में। एंड में जो करते हैं इन्फिनिटिव में वर्ब है उसके साथ ही लिख देंगे। राम कीरे कोम्प्रार लो भी सही है, राम लो कीरे लोग कोम्प्रार के भी सही है, कंप्रार भी सही है। ओके। ये समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ जैसे यस सेम है। हाँ दोनों सेम है। जैसे एग्जाम्पल, राम नीड्स टू वॉश इट, ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं इट 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 को, ये इट है हमारा क्या है यहाँ पे, लो हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ। सो अगर हम लोग देखो, अगर हम लोगों को पता नहीं है कंटेक्स्ट में कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वेदर इट इज मैस्कुलिन और इट इज फेमिनिन, तो हम लोग क्या करेंगे वहां पे, बेसिकली वी विल राइट लो, लो। ओके। जब हम लोग को पता नहीं है हाँ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, तो वी कैन यूज लो, ओके देयर। फॉर एग्जांपल, राम लो नेसेसिटा लावार, लावार इज टू वॉश, टू वॉश। okay, and necessitar is to need, नीडिंग Need. नीड्स। हाँ। और या फिर हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, राम नेसेसिता लावार लो, लावार लो। हाँ। लावार तो लो। यहाँ पे सर बोलते टाइम सर, जस्ट 1 मिनट सॉरी, लावार लो बोल दें कि या लावार लो अलग करके बोलेंगे? नहीं लावार लो, ये एक ही वर्ड है, ये अच्छा, एक वर्ड इकट्ठा है, हो जाएगा। ओके हाँ वो इकट्ठा हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने इसको इस दोनों के हाँ, बीच अलग में नहीं लिखा है। हाँ स्पेस नहीं दिया नो है, स्पेस। हाँ हाँ नो स्पेस ऐसे लिखा है। ओके 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 सेम यहाँ आप कोम्प्रार लो में भी देखोगे तो कोई स्पेस नहीं करेक्ट, है, नहीं है। यस यस, कोई या स्पेस so it will लो। become one word, wash it One will word। become one word, lavar lo। ठीक है, ये क्लियर हो गया Yes. आप लोगों को? हाँ, एक से sir, ज्यादा हाँ। वर्ब होगा तो कैसे यूज करना है, यस हाँ सर। ओके। सो आप लोगों का आईओपी क्लियर हो गया, ओके। जो बेसिक है ये आईओपी का वो आप लोगों का हो गया। सो अब हम लोग, सॉरी डीओपी का क्लियर हो गया, अब हम लोग आईओपी पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ओके। अभी हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे ना, अभी हम लोग Yes. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। यस तो the indirect object tells us where the direct object is going, okay, so indirect object will always tell something about direct object,
Okay, so once we are able to figure out which in a sentence which one Which is is direct. direct object, so indirect object will always say something about about that direct object. Okay, for example, Ram gives the book to Sita. So यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब हमारा कौन सा है, गिव है. गिव Okay. है, ऑब्जेक्ट है सीता. नहीं 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 नहीं, राम क्या दे रहा है, बुक 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 दे रहा है. हाँ, तो बुक डायरेक्ट बुक ऑब्जेक्ट है. हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, बुक. बुक. हाँ, तो गिव्स द ये बुक. हाँ, Yes. हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है DO, बुक. बुक है. ओके, Gives the book. तो वो नाउ टू whom राम इज गिविंग दैट बुक, हाँ, टू whom राम इज गिविंग दैट बुक. that is our indirect object, sir. हाँ हाँ, so Indirect object. Okay, Sita. okay. Sita हाँ. Sita Sita is will indirect become object. our indirect object. IDO, Indirect object. indirect object. Okay, Okay. clear. हाँ सर, हाँ सर. आप जैसे कि नीचे भी देखेंगे, the indirect object answers the Answer the, question हाँ, to whom. Yes. or for whom. हाँ. For whom the action of the verb is performed. Perform. Clear? कोई प्रॉब्लम Yes. नहीं यहाँ पे. नहीं, For example, Ram buys flower for Sita. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, Flower. Flower sir. फ्लावर. क्यों, क्योंकि what he is buying, What? Flower. हाँ. buying, What? he And is for buying, whom. हाँ. हाँ, and for whom he is buying, he is buying. दो Sir. क्वेश्चंस पूछेंगे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लियर हो जाएगा. Sita. हाँ, और जो वर्ब है उसको जो है जैसे राम राइट्स लेटर टू सीता. Sita. हाँ, हाँ, लेटर so इज that, DO. हाँ, because what does Ram write? Writes. Letter. He Letter, writes. sir. He writes Whom? letter. To Sita. हाँ, To Sita. okay. Yes. ठीक है. Yes, sir. So this is a table for indirect object pronouns. So जिस तरीके से अभी तक we were replacing direct object with direct object pronoun. So again here we will replace So what we were doing till here we were replacing direct object with direct object pronouns. Pronoun. So now we will be replacing indirect object with indirect object pronoun. Okay, okay, clear Binoy? जैसे कि राम tiene la pluma, क्या हो जाता था, राम la tiene. Latvian. उसी तरीके से अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को भी रिप्लेस करना सीखेंगे. ओके, हाँ ठीक है. तो ये टेबल है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का. ओके, सो मे ते ले, यहाँ पे लो ला नहीं होता है. यहाँ पे मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, उसके लिए क्या होगा यूज, ले. ले होगा. ले होगा. फॉर हिम, फॉर हर. ओके, For तीनों के लिए एक ही होगा. हाँ, फॉर उस्तेद ऑल्सो, उस्तेद ऑल्सो, Okay. उस्तेद के लिए भी ले होगा यूज. उसी तरीके से आप लोग देखेंगे. और लेस हो जाएगा. हाँ, फॉर देम, फॉर उस्तेदेस वो लेस होगा. वो लेस हो. बाकी सब तो सिमिलर ही है. ओके, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का चार्ट है आपका. नोट डाउन कर लिया ना आप लोगों ने, बुक में भी है हाँ जी. ये. नोट डाउन कर लिया. हाँ, मे तेले नोसोस लेस. for example, in an affirmative sentence statement with one verb, the direct object pronoun comes immediately before the conjugated verb. So यहाँ पे भी indirect object pronoun कहाँ आएगा, वो before the conjugated verb आएगा. Okay, so for example, Ram buys
मी अ गिफ्ट. ओके, सो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? गिफ्ट. गिफ्ट से. हाँ, क्योंकि व्हाट डज क्या राम बाय कर रहा है? गिफ्ट बाय कर रहा है. गिफ्ट बाय कर रहा वेरी है. वेरी गुड. किसके लिए कर रहा है? मेरे लिए कर रहा है. हाँ, तो मेरे मी लिए कर रहा है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. वेरी गुड. तो गिफ्ट विल बिकम. आप लोगों ने आईओपी पहले किया है क्या? आईओपी डीओपी? नहीं सर, नहीं अच्छा किया है. ये आपके सिखाने का जादू है कि झट अच्छा से अच्छा. दिमाग में जा रहा है, पर दिमाग में कब तक रहेगा वो पता नहीं. आप लोग रिवाइज करते रहना इसको यस. बस थोड़ा. यस सर. ओके, फिर यहाँ पे देखो, हाउ वी विल ट्रांसलेट दिस इन स्पेनिश. राम me compra un regalo. राम मे compra un regalo. सो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वैसा का वैसा ही रहने दिए हैं. वी हैव नॉट चेंज्ड इट. पर ये जो आईओपी है हमारा, ओके, सॉरी, ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको हम मी लोगों का ने मे हो गया. हाँ रिप्लेस कर दिया है मे से, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से. ओके, करेक्ट. मी का मे हो गया. उसी तरह से राम ले स्क्रीबे. हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगला देखिए यहाँ पे, राम ले स्क्रीबे उना कार्ता. और इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम लोग, बताएं आप लोग. Ram writes to him a letter. अच्छा, तो आप तो यहाँ पे आप कंटेक्स्ट से देख पाएंगे कि राम राइट्स हिम अ लेटर और हर अ लेटर, हर दोनों हो ऊना तो. सकता है. ऊना तो हर होना चाहिए सर. नहीं नहीं नहीं, वो तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना. हाँ हाँ. वो तो हमारा डायरेक्ट Uno is ऑब्जेक्ट है. one, डायरेक्ट. the letter. हाँ हाँ हाँ, वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उससे कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि क्या लिख रहा है, लेटर लिख रहा है. ओके. हाँ, सिंगुलर है, अब मतलब हाँ ऊन और अब ऊना सिंगुलर है. अब Ram हाँ writes to him or her a letter. Yes, sir. हाँ, हाँ. हिम और हर लेटर. हर तो हर ये ठीक. हमारा, हम लोग यहाँ पे क्लियर नहीं है. ओके, हम्म. Yes. कि ले क्या है, वी आर नॉट क्लियर अबाउट दिस ले. ओके, हम्म. इस Can ले be के he or बारे में she, हम लोग anybody. क्लियर Yes. नहीं है. हाँ, तो ऐसा तो करना पड़ेगा ना हम लोग को. वी विल हैव टू डू समथिंग, वी विल हैव टू ऐड समथिंग सो दैट दिस हिम और हर बिकम्स क्लियर. ओके. ओके, Yes, तो sir. उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आ सीता, फॉर एग्जाम्पल, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना. हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, राम ले स्क्रीबे आ सीता. तो हम लोग यहाँ पे आ सीता लगा दिए. ओके, क्योंकि इस आ सीता यूज करने से टू सीता. ओके, तो ये क्लियर हो गया ना कि ये ले कौन है, हिम है या हर है. समझ रहे हैं आप लोग? Yes, sir. आप लोग समझ रहे हैं, सीमा, विनोय सर और सर, बाकी? हिम होगा या हर होगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ले ही डालना है ना. हाँ हाँ, हाँ, ले. यही डालना है. पर सीता होने से ये पता चलता है कि हर है. इसमें हर सीता है. को लिख रहा है. हाँ. हाँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो ये देखिए, आप पहला जो सेंटेंस है यहाँ पे, राम ले स्क्रीबे उना कार्ता, ठीक है, यहाँ पे तो क्लियर नहीं है वो सीता को लिख हाँ. रहा है, गीता हाँ. को लिख रहा है, या मोहन को लक्ष्मण को लिख रहा लिख है. रहा है. हाँ. हाँ, किसी को लिख रहा है, हम लोग को हाँ. पता ही नहीं है. नहीं ठीक है, है. लेकिन अगर हम लोग को उस सेंटेंस को क्लियर करना है, और मान लो, तो हम आ लोग सीता. राम ले स्क्रीबे आ सीता उना कार्ता, हम्म. ये कर देंगे. हम्म. इससे तो सीता हमारा को क्लियर हो लिख रहा गया. है. हाँ, इससे हमारा क्लियर हो गया कि ले इज हर एंड नॉट हिम. हम्म. हाँ. ओके. तो सर अगर लक्ष्मण को लिख रहा है तो भी करेक्ट है. राम ले हाँ 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 स्क्रीबे आ लक्ष्मण उना करता, वो भी ठीक है, आ ऐसे ही होगा. हाँ. लक्ष्मण. आ देख लो. लक्ष्मण हुआ करता. हाँ. आप देख लो, वो भी सही है ना? सही. यस. यस. ओके, सिमिलरली जो दूसरा सेंटेंस आप लोग देखोगे, इट इज मेंशन देयर कि राम लेस स्क्रीबे उना कार्ता. सो अगेन दिस लेस इज नॉट क्लियर. ओके, so we can make it more clear by adding a sus padres to his parents. Okay, Ram les escribe a sus padres una carta. Yes. Uh,
Sus Padres is writing his letters to his parents, sir. क्या 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 Sus Padres means पेरेंट्स को लेटर लेटर लिख लिख रहा रहा है. है. हाँ, तो हाँ. पेरेंट्स, ये जो ना आसूस पादरेस, तो ये तो प्लूरल हो गया ना, हाँ ये सर. प्लूरल हो गया, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या इसको रिप्लेस किया है, लेस लेस से से. रिप्लेस किया है. हाँ, ले नहीं ले को लिखा लेस है. से रिप्लेस किया है. नहीं, आसूस पादरेस को की जगह पे हम लोगों ने लेस लिखा है ना, हाँ उसको सर. डिनोट हाँ. करने के लिए, और लेस हाँ. को क्लियर करने के लिए हम लोगों ने आसूस पादरेस जोड़ दिया है. हाँ सर. ओके, ओके. यस, तो ये तो देखो. लेस Padres means parents. सब वो है कि टू देम, हाँ yes. हाँ टू देम. To हाँ. them. ये बेसिकली आप लोगों के लिए ये चार्ट है डीओपी और आईओपी का. आप लोग को ये समझ गए ना, मे ते लोला नोस ओस लोसला, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, और मे ते ले नोस ओस लेस, ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. ओके, फाइन. Yes, sir. अब in a sentence we can replace both direct object pronoun and indirect object pronoun at the same time. For example, यहाँ पे आप लोग देखो, ये इस लाइन को देखो आप लोग. एक मिनट. ये देखो, दे गिव देम टू मी. ओके, दे गिव देम टू मी. हेलो. Yes, sir. हाँ, Yes, आवाज sir. आ रही है ना आप लोग को. Yes. हाँ हाँ, सो दे गिव देम टू मी. ओके, सो हमारा यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है इस सेंटेंस में, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है? They give them. देम. Them, sir. देम है. तो देम क्या है हमारा? डायरेक्ट Direct ऑब्जेक्ट है. object. और सॉरी, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा? मी. Me, sir. वेरी गुड. ओके, सो जब अब हम एक सेंटेंस में, अभी तक या तो हम लोग सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहे थे, और वी वर रिप्लेसिंग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और विद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. But if in a sentence we want to replace both direct object also and indirect object also with direct object pronouns and indirect object pronouns, so हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए क्या फॉर्मूला है? पहले indirect object pronoun आएगा. ओके ओके, पहले क्या आएगा? indirect object pronoun आएगा, फिर आएगा डीओपी आएगा, फिर क्या आएगा? वर्ब. कौन? ओके, हेलो. ये क्लियर है आप लोगों को? हेलो. से ये थोड़ा क्लियर नहीं है सर. हाँ No influence there, sir. हाँ, तो आप देखो कि डायरेक्ट, अगर हम लोग सेंटेंस में बोथ यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी यूज कर रहे हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी यूज कर रहे हैं, ठीक है. सो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को लिखेंगे, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को लिखेंगे, और फिर कॉन्जुगेटेड वर्ब्स आएगा. ओके, ओके, ये आप लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, राइट? तो हम लोग यहाँ बुक का हेल्प लेते हैं.
यहां से आप लोग पढ़िए। ऑल्सो नोट दैट, यहाँ से यहाँ से Also, सब मैं पढ़ूं? हाँ हाँ पढ़िए, कोई भी आप। Also note that when there is both an IO and a DO pronoun in a sentence, IO comes first. That is the order of the sentence is IO plus DO plus verb. अच्छा, ये रूल जो है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के लिए है। हाँ मतलब एक Okay. सेंटेंस में जहाँ पे Okay. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी है, सो पहले जब हम लोग उसको स्पेनिश में लिख रहे हैं, ट्रांसलेट कर तो रहे हैं, IO पहले आएगा। तो हाँ आईओपी पहले आएगा, डीओपी बाद में आएगा, फिर वर्ब आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग देखिए, पाब्लो कोम्प्रा उना कामिसेता पारा मी। सो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है हमारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है यहाँ? कामिसेता। कामिसेता। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है मेरा? मी पारा मी। हाँ, तो यहाँ पे जब हम लोग इसको लिख रहे हैं स्पेनिश में, तो पहले आईओपी आ रहा है, देखो पहले पाब्लो में, हाँ। हाँ, और उना कामिसेता है ना, ओके, यहाँ पे ला होगा, लो की जगह यहाँ पे ला होना चाहिए, क्योंकि उना कामिसेता है ना। तो उना आप, इज वन तो हाँ बट वो फेमिनिन है ना। कामिसेता इज फेमिनिन, सो ला हाँ होना चाहिए। यस। हाँ, पाब्लो में ला कोम्प्रा। तो ला कॉम्प्रा होगा, आप बोल रहे हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ। बट सर ये ओके ओके, पाब्लो ले रहा है इसलिए लो है क्या? नहीं 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 नहीं, वो नहीं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के हिसाब से होगा ना। पाब्लो में मेरे लिए ले रहा है, पर वो मैं कौन हूँ वो क्लियर नहीं है। मेल है क्या फीमेल है क्लियर नहीं है। हाँ पर तो उन्होंने मेल ही लिया होगा ना सर, मेल डोमिनेटेड बोलते हैं तो। नहीं 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 नहीं, ये उस तरीके से नहीं चल रहा है। नहीं है। अच्छा। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये एग्जांपल यहाँ पे लिख के ऐसे बताऊँ। ये दिख रहा है मेरा आपको? स्क्रीन दिख रहा है ना आपको, यस। आप लोगों को? हाँ, तो सेंटेंस क्या है आप मेरे को बताइए। पाब्लो कोम्प्रा उना कोम्प्रा उना कामिसेता कामिसेता पारा पारा मी। पारा, ओके। हम्म। अब यहाँ पे हमारा डीओपी क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट DOP कौन है सा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कामिसेता। कौन सा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा है कामिसेता। विनोय आप लोग समझ रहे हो ना? बिना में ऐसे कर दो, थम्स अप कर दो। हाँ हाँ, तो फिर इजी हो जाता है, म्यूट को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा कौन है? मी है। नहीं है, ओके। तो अगर हम अब अगले अब जो सेंटेंस हम लिखने जा रहे हैं उसमें हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से, ओके। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? आप लोग, रूल क्या है? लो। पहले पहले क्या आएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा पहले या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा पहले? इनडायरेक्ट आ जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से। हाँ, सो मी के जगह क्या लिखेंगे? मी। में। मी। और फिर क्या लिखेंगे हम लोग? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, क्या है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? उना कामिसेता। तो उना कामिसेता इज फेमिनिन, यस। है ना, हाँ। सिंगुलर। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ला, और फिर हम लोग वर्ब। वर्ब तो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, कोम्प्रा। समझ गए? पाब्लो मेला कोम्प्रा। यस सर, सिंपल, क्लियर है। ठीक है। आप लोग को क्लियर नहीं हुआ तो फिर से आप लोग मेरे को बताओ, मैं फिर से आप लोग को समझाऊंगा। ठीक है सर, क्लियर है।
बिनोय आपको क्लियर है, बाकी लोगों को क्लियर है? क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है थोड़ा, इसीलिए थोड़ा मैं ट्रिकी है सर। हाँ, तो अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे को फिर से बताओ। बाकी लोग जो हैं, कौन है और? सर सेकंड वाला एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एलेना रेगाला उना हाँ, हाँ, ब्रूसा एक एक मिनट और में बाकी लूसिया। लोगों से पूछ लूँ, उनको समझ में आ रहा है या नहीं। ओके, बिनोय आपको समझ में आ गया? यस। हाँ, ओके। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आगे वाला एग्जाम्पल डिस्कस कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या है, हमारा एग्जाम्पल है शी सेल्स इट टू यू। शी सेल्स इट टू यू, आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे एग्जाम्पल ये? दिख रहा है सर। हाँ, शी सेल्स इट टू यू। ओके, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? इट। इट है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। यू है और इनडायरेक्ट। हाँ, यू है इनडायरेक्ट यू ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट, यस। वेरी आई गुड। यू। ओके, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, हम लोग किस तरीके से इसको ट्रांसलेट यू। करेंगे? पहले हम लोग ये लिखेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो एया। हम लोग लिखेंगे शी का एया। एया हो जाएगा। एया, फिर वेरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। गुड। टू। हाँ, क्या आएगा? टू। ते। ते। पे। सॉरी। ए, फिर क्या आएगा? फिर आएगा डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। नहीं पता है अगर हम लोग को उसके बारे में, क्यों मैस्कुलिन हाँ है या तो लो। फेमिनिन तो लोग कर दिया हम लोगों ने। टेलो, वेंदे, वेंदेर इज टू बाय, व्हेन द टू सेल। तो टू सेल, सेल सॉरी। ना। हाँ, टू सेलिंग। टू सेल, हाँ, सेल टू व्हेन सेल। दे वांट हाँ, सो वेंदेर इज टू सेल, तो अय्या टेलो वेंदे। ओके, यस सर। अगेन अगेन यहाँ पे एक थोड़ा सा एक और ट्रिक है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे। हाँ, अगला अगला जो इसमें है वो भी हम लोग देख सकते हैं। एलेना रेगाला उना ब्लूसा लूसिया। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या इसको किया, एलेना से ला रेगाला। अच्छा, अच्छा, सो फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अब देखिए, हो सकता है ना जब ये एग्जाम्पल में देखते हैं, आप लोग मुझे ये सेंटेंस बताइएगा, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? एलेना। तो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, बताएं आप लोग। एलेना एलेना रेगाला। एलेना रेगाला, रेगाला हाँ, una blusa हाँ, blusa दूसरा a Lucia। लूसिया। लूसिया। ओके, तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ब्लूसा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा लूसा। एलेना रेगाला una blusa। Blusa is the direct object। Lucia और is indirect। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? Lucia। ओके, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? एलेना, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा। हाँ, तो क्या आएगा? लूसिया के लिए कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होगा, बताइए? लूसिया। लूसिया के तो लिए भी तो होना तो चाहिए था ला। ला कैसे होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी भी ला होता है, आप लोग देखिए फिर से उस टेबल को। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो इनडायरेक्ट ले ऑब्जेक्ट तो कभी ले ला ले या लो ले होता है, ले होता है। सर हाँ, तो ले पहले हम लोग ले ले। ले लिखते हैं ना, पहले हम लोग ले लिखते हैं। तो यस सर।
एलेना, जो हम लोग हाँ अभी तक ले सीखे है, थे। मे ते ले है तो ले होगा। हाँ, ले। और हाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए क्या आएगा? ला, क्योंकि उना ब्लूसा है तो ब्लूसा ला है। है। हाँ हाँ, उना ब्लूसा है तो ब्लूसा ला है। आएगा। हाँ, हाँ फेमिनिन है। एलेना ले ला रे, रेगाला गा, ला। तो यहाँ रेगाला। पे देख रहे हैं आप लोग, बार बार ये ले ला, ये रिपीट हो रहा है साउंड। ओके। ले ला। यस सर। तो हाँ तो ये इस साउंड को इस रिपीटेशन को ओमिट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल इंस्टेड राइट, यहाँ पे ले को हटा के हम लोग क्या यूज करेंगे, से। से। ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा एलेना से ला रेगाला, क्योंकि वो साउंड के रिपीटेशंस को हटाने के लिए सर। सर ये कंफ्यूजन बढ़ नहीं गई? नहीं नहीं, बढ़ी नहीं। आप देखो, देखो आप, मैं बता रहा हूँ, जब भी आपका ले लो आएगा, अब तक लेला ले को आएगा। याद कर रहे थे, अब से को याद करना पड़ेगा सर? नहीं नहीं कि नहीं, जहाँ पे ले आएगा वहां से आएगा? नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या नहीं बोला आप लोगों को, देखिए मैंने क्या बोला, फिर से मैं आपको फिर से ले समझाऊंगा। ले ला इंस्टेड ऑफ ले ला। हाँ, देखिए, अगर हम लोग अभी तक जो सीखे, इफ वी विल यूज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू दैट, ओके, जो अभी तक हम लोग सीखे हैं, सो तो हमारा सेंटेंस कैसा होना चाहिए था, ए लेना ऐसे ले ला ले ला रेगाला। ओके, रेगाला। यस। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना। नहीं है प्रॉब्लम ना। नो। सो जब भी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दोनों एल से शुरू होगा, जब अच्छा। दोनों एल से शुरू होगा, तो हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का जो ले है उसको नहीं, उसको हटा देंगे और उसके जगह क्या लिखेंगे, से। से। जब दोनों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एल से शुरू होगा, हम्म, ओके, तब हम लोग ये ओके। यूज करेंगे। तो आप देखोगे एग्जाम्पल में, ले लो क्या बन जाएगा, से लो बन से जाएगा, लो। क्योंकि यहाँ पे भी एल पहले आ रहा है और यहाँ हाँ पे भी एल पहले आ रहा है। ले ला क्या बन जाएगा, से ला बन जाएगा। ले लोस क्या बन जाएगा, से लोस से बन लोस। जाएगा। ले लास बन जाएगा, से लास। ले स्लो बन जाएगा, से लो। ओके, ओहो। क्योंकि यहाँ पे जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन शुरू होगा एल से, ओके, सो हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग। आप लोग देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को कुछ किया, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन था, इसको हम हाँ लोगों ने वैसा ही छोड़ दिया। ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को कुछ नहीं करना है, बल्कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के जगह हम लोग उसको से रिप्लेस कर से कर देंगे। देंगे। ओके, जब भी देखिए, whenever both pronouns begin with letter L, ओके, अगर दोनों प्रोनाउन किससे बिगिन करेगा, लेटर एल से, चेंज द फर्स्ट प्रोनाउन टू से, सिंपल। समझ रहे हैं आप लोग? वो से हमेशा से रहेगा, सिंगुलर में भी रहेगा से और प्लूरल में भी से ही रहेगा। प्लूरल में भी से रहेगा, सेस का एग्जैक्टली। सेस नहीं हो जाएगा। नहीं होगा, ये देखिए ना आप यहाँ पे, हाँ ये एग्जांपल, सब इस जगह से एग्जांपल में, ही है। हाँ इस एग्जांपल में देखिए, लेस है लेस, तो भी सेलास ही होगा, सेसलास नहीं होगा। हाँ ले स्लो है तब पर भी से लो है, हाँ सिंपल। ओके, ओनली जब एल एल होगा तब। हाँ जब दोनों, जब हाँ दोनों प्रोनाउंस आईओपी एल, डीओ एल एल से है तो तो कंडीशंस अप्लाई। हाँ यहाँ पे ये कंडीशन है। ओके, विनम्रता आपको समझ में आया ये वाला? हेलो विनम्रता, विनम्रता आर यू यस देयर? सर। हाँ, आपको समझ में आया ये, जो हम लोग अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दोनों अगर एल से शुरू होगा तो? कैन यू रिपीट विनम्रता, आपको समझ में आ गया ना? हाँ, ओके ओके फाइन। यस यस तो यस सर। यस सर। ओके, ओके, तो
बेसिकली यही था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का जो बेसिक्स था वो आज हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, तो ये आज बहुत का इम्पोर्टेंट। नोट्स एक बार आज का नोट्स भेज दीजिए सर से हम। हाँ हाँ, एकदम श्योर, मैं भेज दूंगा नोट्स। वो क्योंकि एक्चुअली अब होता है ना कि आज कॉम्प्लिकेटेड था क्लास, तो अब और नोट्स पढ़ सकते हैं हम, फिर से पढ़ेंगे तो हाँ सीखने के लिए इजी होगा। हाँ हाँ हाँ, वो एक्चुअली में थोड़ा सा मैं नोट्स बनाते वक्त यहीं आप लोगों के सामने उसको थोड़ा एडिट कर देता हूँ ना, तो हाँ इसलिए मैं तुरंत आपको क्लास के बाद नहीं भेजा, क्योंकि उसमें कुछ बहुत सारा चीज़ अनक्लियर हो जाता है, क्योंकि मैं एडिट करता हूँ आप लोगों के सामने, कुछ ठीक एग्जांपल्स है उसमें ऐड करता हूँ, तो इसीलिए मैं सोचा कि क्लास के बाद जब सारा खत्म हो जाएगा आपकी क्लासेस, उसके बाद मैं सारे नोट्स को एक बार रिवाइज कर लूंगा, देख लूंगा कहीं कोई मिस्टेक्स नहीं है, फिर मैं आप लोगों को भेज दूंगा, इसीलिए मैंने नहीं ठीक भेजा। है ओके Okay, sir. ठीक है। Okay, sir. ओके। तो ये आप लोग थोड़ा इसको घर में देखना एक बार, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को। ओके, ओके। तो दूसरा चीज जो हम लोग आज सीखेंगे वो ये सीखेंगे फिन दे सेमाना के बारे में। ओके, वीकेंड्स के बारे में। ओके, हाउ टू टॉक अबाउट आवर वीकेंड्स। ओके, तो उसके लिए बेसिकली वी विल बी नीडिंग वर्ब इर, इर प्लस आ। ओके, फॉर एग्जाम्पल इर का कॉन्जुगेशन क्या होता है, आप लोग देख सकते हैं, इर इज टू गो। ओके राइट, तो इर का कॉन्जुगेशन क्या है, वही, Voy vas va. वामोस वाइस Voy वन, vas va. Vamos vais van. वन। ओके, सो अगर हम एक हम लोग, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, देन हाँ, फिर प्लस आर। ओके, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग यूज करना सीखेंगे, इर प्लस आर को, और इससे हम लोग किस तरीके से अपने फिंदे समाना के बारे में बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, note that the verb IR is followed by the preposition a when this verb is used for the future tense for making or describing future plans in Spanish. So whenever you are talking about your future plans, okay, that I will be doing this, I I will be going to watch cricket match, or I will be going to I will prepare food for me, or I will go to the market. I will go to the market. So इस तरह का जो फ्यूचर प्लान है, ओके, plans about the future, so you can make sentences by using this simple construction, ir plus a. For example, voy a aprender a cocinar la comida española. Okay, so I am going to learn how to cook Spanish food. Okay, voy a ver una película mañana. So voy a ver. तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस पास्ट verbo infinitive without conjugating. Okay, फॉर एग्जाम्पल, सीमा आप अगर कहना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू, आई एम गोइंग टू ना, I will be going. हाँ, सो वही आ, और जो वही के साथ जो वर्ब होगा, वही आ, अब इसके बाद जो वर्ब यूज करेंगे, वी विल नॉट बी कॉन्जुगेटिंग दैट वर्ब। ओके, हम लोग उस कोसिनार। वर्ब, हाँ वही आ कोसिनार, कोसिनार, सीधे कोसिनार। ओके, Going वी to विल नॉट बी कॉन्जुगेटिंग वर्ब, yes. तो वही आ कोसिनार ला कोमीटा।
For example, I am going to cook the food. Okay. Yes. For example, voy a aprender la gramática. Okay. Going to learn grammar. Gramática. Yes. Okay. Yes. या या फिर यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हैं आप लोगों के बुक में वही vamos a viajar a París este fin de semana. Vamos a viajar a París este fin de semana. We are going to Paris this weekend. Weekend. Okay. Hmm. So here are we can use following expressions to describe what we are going to do. For example, aprender a cocinar. Voy a aprender a cocinar. I'm going to learn to cook. Voy a viajar a España. I'm going to travel to Spain. Okay. सेम सेंटेंस एक कोई सेंटेंस आप लोग भी इस तरह का बनाइए. Attend dance school. वो voy a asistir a la escuela de baile. For example, if I want to say Binoy is going to Binoy is going to go to the theater to watch movies. Okay, ये वाला जो है Binoy is going to theater to watch movies. तो हम लोग कैसे बोलेंगे इसको स्पेनिश में बताएं? एल आएगा ना सर, बिनॉय की जगह पे एल आ जाएगा. नहीं सीधे हम लोग बोल सकते हैं बिनॉय. अच्छा बिनॉय बोल सकते हैं. va al cine a ver películas. Binoy va a ir al cine. Va a ir al cine. He is going to go to the theater. Okay. Okay. So Binoy va a ir al cine a ver películas. या हम लोग बोलेंगे Binoy is going to learn swimming, for example. तो हम लोग बोलेंगे Binoy va a aprender a nadar. Okay. Yes. ये आप लोग समझ गए. अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ है. तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आ गया ना. और आप लोगों को आईओपी और डीओपी फिर से एक बार आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करिएगा. ओके. उसके बिना आप लोगों का नहीं होगा, वो क्लियर नहीं होगा. जैसे कि यहाँ पे आप देखिए vamos al cumpleaños de Bea. ओके. सेम. ओके. तो ये इस सेक्शन मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है ना. हाँ. हेलो. स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को मेरा ना. हाँ. तो आप देखिए ये कुछ like these are some expressions which we use for greeting. Okay. And here you can see, like for example, if somebody comes to your house and he says hola, for example, so how you will reply to that hola? Okay. So you can reply hola, buenos días. Okay. Then he will ask you ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal means how are you? ¿Qué tal is how are you? Similarly, you can use ¿Cómo estás? Okay. Or ¿Cómo están? Or estáis. Okay. For if there are more than one person, then you can say ¿Cómo estáis? Or ¿Cómo están? Okay. So to that we can reply muy bien. Muy bien, very good. Gracias. ¿Y tú? Y tú. Y tú, और या फिर What अगर about you? it is more formal, it is if it is a more formal conversation, then we can use y usted. Y usted. For example, if I say hola, so how will you reply to that? Hola. Muy bien, gracias. ¿Y usted? No. I haven't asked you how are you. I'm just telling you hola. Okay. So if I'm just saying you hola, hello, so you can reply me back, hello. Okay. So I cannot. हाँ, को से फिर वापस ओला ही हाँ, बोल ओला सकते बोल हैं सकते हैं हम लोग ना, ओला, फिर ओला द का जवाब पर्सन ओला. हाँ, सो ओला, हाँ. फॉर एग्जांपल अगर वो आगे आपको पर्सन पूछता है बुenos días, ¿qué tal? गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? सो you can reply to that person muy bien, muy bien. muy bien, gracias, Gracias. muy bien, Thank you. gracias. Y tú. Y tú या Y tú. y How about usted, it? हाँ, if for You example, stayed. हाँ, You stayed. if you are talking, if you are in a very formal situation, so there you will use usted, na, y usted. Y usted. So when somebody comes to your house, you can greet him by saying bienvenido, welcome, Welcome. bienvenido. Bienvenido. You're welcome. This one, so welcome. Bienvenido. And when Bienvenido. somebody says you bienvenido, you must say gracias, muchas gracias, Muchas gracias. muchas gracias. Okay. Muchas gracias is very thankful, sir. Thank you. हाँ, thank you. फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देखिए, ये स्क्रीन पे आप लोग देखेंगे कि ये कुछ सिचुएशंस दिए हुए हैं, ओके, और उस सिचुएशंस में कुछ कन्वर्सेशंस है, तो हम लोग उस कन्वर्सेशंस को थोड़ा करने का कोशिश करते हैं, ओके. सो वी विल थ्रू दिस वी विल लर्न हाउ टू रिएक्ट इन अ सिचुएशन. अगर इस सिचुएशन में होंगे तो हम लोग हाउ वी विल रिएक्ट, ओके. फॉर एग्जाम्पल पहला सिचुएशन में क्या है, क्लारा ओपन्स the door and Juan and Garcia are there. So Clara is opening the door and who has come to visit her? Juan and Garciela. Juan and Graciela. Graciela. Very good. So जैसे ही Juan और Graciela enter करते हैं रूम को, they are saying que salón tan espacioso, que salón tan espacioso. Okay. Y los muebles son muy bonitos. Los muebles son muy bonitos. क्या हुआ इसका मतलब? बताएं आप लोग. सालोन मतलब क्या होता है? Salon. Salon, sir. It's haircut salon, sir. नहीं. जो घर में बड़ा रूम होता है ना, हॉल, ड्राइंग रूम, लॉन्ग drawing room. सॉर्ट ऑफ थिंग. हॉल जो होता है घर में, जो बड़ा सा रूम होता है, सो Big room. Living room, sir. हाँ, तो उसको देख के वो लोग जो फ़ुआन है और ग्रासिएला क्या बोल रहे हैं, que salón tan espacioso, what a spacious hall, y los muebles son muy bonitos, and furnitures, los muebles, furnitures, okay, All the furniture. हाँ, son muy bonitos. It's very pretty. It's very beautiful. Very pretty. हाँ. So to that Clara is replying, estamos muy contentos con este piso. We are very much happy. We are very much satisfied. Okay, con este piso, with this apartment. We are very much satisfied with this apartment. Es muy espacioso, luminoso, tranquilo. It is very spacious. It is full of light. Well lighted and peaceful. Peaceful, calm. ¿Queréis verlo? Here, ¿queréis verlo? अब बताओ यहाँ पे
आप लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज हो रहा है क्या? इस एक सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज हो रहा है क्या? केरेइस ही होगा शायद। अरे नहीं, अभी सीमा आपको बताया ना, वेर लो है यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। हाँ, वेरलू, यस 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 यस, करेक्ट सर, करेक्ट। ओ गॉड, सॉरी सर, सॉरी। और सर देखिए सॉरी यहाँ को क्या बोलते हैं सर? सॉरी को क्या बोलते हैं? पेर्दोन पेरदोन, पेरदोन सर, पेरदोन। या यस, वेरलो जो है वन वर्ड हो गया। यस, करेक्ट हाँ, करेक्ट। केरेइस वेरलो। यहाँ पे दो वर्ब है ना। आई डू यू ऑल वांट टू सी इट। See it. हाँ, तो यहाँ पे दो वर्ब है, तो या तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लो केरेइस वेर, या इसको आप सीधे बोल सकते हो केरेइस वेर लो। यहाँ पे मैंने आप लोगों को सिखाया था ना ये। Yes, sir. इधर गया ये। वेरलो। ये देखिए, या तो राम केरे कोमकार लो, कोमकार यस लो, यस। या राम लो केरे यावार लो, कोमकार। यावार तो लो, वहां पे करेक्ट। ए पे केरेइस केरेइस वेरलो। केरेइस वेर लो। लो, क्या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? लो ए रे केर केरेइस इस। वेर। ओके, दोनों कह सकते हैं हम लोग। वेरलो। ओके, विनीत ओस्लो इंसेनियो। अब आप लोग को मेरे को इसका ट्रांसलेशन बताना है, मैं नहीं करूंगा। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी प्रोनाउन यूज हो रहा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी प्रोनाउन यूज हो रहा है यहाँ पे। बताइए। यानी ओस्लो। सब्जेक्ट क्या है पहले ये समझिए। अच्छा, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आता है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आता है? पहले इनडायरेक्ट आता है। ओस तो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा ओस है। ओस है। डायरेक्ट क्या लो, है? लो है लो डायरेक्ट है। ऑब्जेक्ट। और इंसेन्यो मतलब ये वर्ब है हमारा, है ना? यस तो कम, यस। वेनीर इज इम्पेरेटिव। आप लोगों को बताया था ना, वेनीर का आईडी लग जाता है अंत में। सीमा आपने क्लास किया था और शायद अभिनय ने भी क्लास किया था। वेनीर का वोसोत्रोस फॉर्म में आईआर हटा के आईडी लग जाता है इम्पेरेटिव में। यस सर, यस याद है ना, मैंने बताया यस। था, है ना? आप लोग इम्पेरेटिव का एक बार कॉन्जुगेशन फिर से देखिएगा, ठीक है? सो वेनीर कम, विनीत Oslo कम। ingenio. I will show it to you all. Okay, I will show it to you all. तो जो रूम वो उसका पीसो दिखाने का बात हो रहा है ना, पीसो। पीसो इज अपार्टमेंट ना। सर यहाँ पे आई कहाँ आ गया? ये तो थर्ड, सेकंड और थर्ड की बात हो रही है ना सर, ओस और लो। हाँ हाँ हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपने बोला आई विल शो यू द अपार्टमेंट, यहाँ पर। हाँ मतलब इंसेनियो, ये वर्ब कॉन्जुगेटेड है ना, हाँ 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 इससे मैंने पकड़ा। हाँ। फॉर ओके ओके एग्जाम्पल, ओके। फॉर एग्जाम्पल I will, for example, I will write it for you, for example, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ I will write it for you। अच्छा, ये यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, उसको ऊपर लिखता हूँ मैं।
I will write it for you. यहाँ पे हमारे DOP क्या है? DO क्या है हमारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? It. It. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? You. You. तो मैं क्या बोलूंगा? इसको ट्रांसलेट कैसे करूंगा मैं? ओस पहले आ जाएगा. ओस नहीं, हाँ मतलब टे टे, यू ऑल नहीं ना टे. बोल रहे हैं, टे हाँ. टे लो escribo. तो आई I will write it for you. So te. Yes. Te lo escribo. हाँ Correct. Correct. तो इसलिए वो एस वहाँ पे वो था. हाँ, तो वहाँ पे इन सेन्यू Yes. है ना, इसीलिए मैंने वहाँ पे समझा कि आई हो गया वो. Yes. ओके, Okay, sir. तो सेकंड डायलॉग आप देखोगे. Clara is the three of them and Ricardo are in the living room. Clara is showing the house to Juan and Graciela. Juan and Graciela. For example, bueno, es tarde ya, pero sí solo son las 12 y hoy es sábado. Bueno, es tarde ya means it is okay. Bueno is okay. It is already late. Okay. Pero sí solo son las 12 y hoy es sábado. But it is only 12. अभी बस 12 बजे हैं रात के. Okay. And hoy es sábado. And today is Saturday. Okay. Ya, pero mañana tengo algo de trabajo. Yes. Okay. But tomorrow I have some work to do. अच्छा, un domingo मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? Sunday. On Sunday. Sunday को. हाँ, very good. हाँ. Sí, yo Yes. también tengo que irme. Yes, I also have to go. I will also have to leave the party. Okay. Bueno, pues nos vamos todos. Okay. Fine. So we all can go. Go. Let's go. Chicos. हाँ, chico. Chicos. Chicos, gracias Yes. por la cena. Thank you for the dinner. Okay. No I देके. No I देके का मतलब क्या होता है? Not at all. Don't mention it. है ना? No I देके. No. Not at all. Estáis है ना? जब siempre. है ना? No. Don't mention it. Estáis siempre invitados. You all are always welcome. Gracias a vosotros por venir. Thank you, all of you, for coming. ओके, तो इस तरह का ये कुछ सिचुएशंस दिए हुए हैं और यहाँ पे वो सारा कुछ आपका ये है. तो आप लोग इसको इस तरीके से घर में और सारे को आप लोग मीनिंग खोज खोज के इसको देख सकते हो. ओके, ठीक है. Yes, sir. ओके, तो आप लोग इस तरीके से ये PSL 002 में जो ये चैप्टर है इसको आप लोग आराम से अब कर सकते हो. यहाँ पे आप लोग देखोगे कि बेसिकली कुछ आप लोगों को दिया हुआ है कि कल्चरल aspectos culturales जो कल्चरल एस्पेक्ट्स है स्पेन में. अगर आप किसी के यहाँ डिनर पे गए तो वहाँ पे आपको कैसे कब जाना है, वहाँ पे क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. तो वो आप लोग यहाँ से इसको पढ़ के देख सकते हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कहते हैं स्पेनिश कल्चर इट इज अगर आप किसी भी पार्टी में लेट जा रहे हो तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड ना गुड. तो यू शुड इन्फॉर्म बिफोर हैंड to the host that you will be coming late. Late. Okay.
Uh, for example, again here, if you can see, remember that at Spanish homes, guests do not remove their shoes. Actually, Spanish people, if they remove their shoes at home, they wear slippers, and not everyone does it. What they definitely do not do is to walk barefoot. Okay, so generally, you don't ask your guests to remove their shoes. Regards to gift to bring along Bring along pasteles, cakes, pasteles, pastries, vino, uh, wine, and flores. Flores is flower. flowers. Are always a good choice. Good However, when choice. gathering with very close friends and relatives, this This is is a more more flexible, non-written non-written. rule, and guests do not feel so much obliged to bring any present. Okay, so basically, here you can know about the basic rules of going to a party organized by any Spaniard. Okay, so you can read this on your own. So again, here there are two boxes here. Okay, there are two paragraphs. One is written by one is written about the youth, Spanish youth, the youth of Spain, and another is for youth of Latin America, South America, and a cultural comparison has been done in these both, that how youth in Spain uh, uh, like uh, how they spend their holidays. Okay, what all things they do in their holidays. Okay, or if they have a weekend. Okay, what they will prefer to do. So, for example, here, can anyone read this? Sir, I will read. Sure, sure. ¿Cómo se entretienen los jóvenes españoles en la actualidad? A medida que los años han transcurrido, las formas de entretenimiento han No, entretenimiento. han No, वो गलत हो गया वहाँ पे, वो हान अलग होगा, वो हान नहीं है, आन है, आन आन है आन तो वो अलग होगा, entretenimiento, entre आन evolucionado. evolucionado notablemente, sobre todo gracias a los avances tecnológicos como la llegada de la radio, cine y televisión, ordenadores y internet, entre otros. Hoy en día existe una gran variedad de alternativas para que los Alternativas. Alternativas. alternativas para que los jóvenes puedan entretenerse solos o en compañía. Very good. Very good. So, So, so how do youth in Spain enjoy? Okay. So basically, when they have a weekend, or when they have a summer vacation, for example, or winter vacation, so what all things they do? Okay. So and the way today youth is spending their time has changed a lot because of llegada de radio, cine, televisión, ordenadores. Ordenadores is computer. yes, computer, Ordenadores, internet. internet, and others. Okay. So, for example, anyone else in the next paragraph? Can anyone else read the next paragraph? बिनोय आप बिनोय हाँ हाँ सर, हाँ सर।
Las actividades de entretenimiento más comunes y antiguas que realizan los jóvenes Jóvenes, son, jóvenes, jóvenes son ir a bares, teatros, 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 Teatros. teatros, restaurantes, cafés, restaurantes, 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 cafés cafés, Cafés. y de comprar, compras, así como también Rea. realizan, realizan, Realizan. recorridos, Corridos. recorri- turísticos, recorridos turísticos, turísticos o viajan a las Viajan. distintas provincias. El teatro no es muy común Común. y en vez de ir al cine a ver una película recién, Recién. estrenada, recién, Estrenada. recién estrenada. estrenada, Optan optan por por las las plataformas digitales como Digitales, Netflix, digital, digitales. digitales. digitales como Netflix. Los दिगी दिगी jóvenes दिगी नहीं दिगी अपना Digi, ये बिनोय digi, बिनोय दिगी नहीं आपने दिगी बोलते हैं ना गी नहीं he, जी खी he, ही हाँ digitales, digitales digitales नहीं como दिखी खी Netflix, ही digitales digitales, okay. ठीक है digitales como Netflix, los jóvenes de Hispana España, prefieren España, prefieren irse de fiesta en pubs o oops botellón en la botellón, botellón, botellón botellón, en botellón en yon, la yon, que los jóvenes suelen asistir para socio- socializa socializar, 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 beber socializar, beber, cantar y disfrutar del ambiente. ambiente. Okay, okay, okay. So basically, in this paragraph, it is mentioned that how do they enjoy? Okay, how do they entertain themselves? Okay, so they go to bar, they go to theater theater, restaurant cafes they cafe, buy Pub, ir de watch compras, Netflix. and they go for shopping. Ir shopping de compras. Okay, Así como también and they also go for recorrido. They also go for recorridos turísticos. Recorridos turísticos is uh, like Recreation. no. It is like turísticos. Turísticos is so there are some special tourist uh, uh, Destination. destinations. So they go and visit there also. Viajan a distintas provincias. So they also go and visit different provinces. Okay, and because of Netflix, so they also watch Netflix and often like not they do not go uh, for watching movies in cinema halls. Okay, or they prefer watching movies on Netflix. Netflix. Okay, so these are the things digital that platform they. yes So the last paragraph. Anyone else? Anyone else? sir Huh. I will read Chit- Chitraksha. Yes, sir. I'll try. Huh. En la actualidad también están las formas de entretenimiento modernas como ver series en Internet, jugar videojuegos
jugueos, etc. Y que a través de ella es posible Possibly. sorry, Possibly. posible encontrar una gran variedad de alternativas Okay, okay, que okay. Okay, Chitraksha, 1 minute. Listen to this. Okay. En la actualidad también están las formas de entretenimiento modernas como ver series en internet, Yes. jugar videojuegos, etcétera, ya que a través de ella es posible encontrar una gran variedad de alternativas. Okay. Chitraksha, you can continue. yes, This can read this last line. según una encuesta, los jóvenes españoles son los que más se divierten de Europa. Divertirse es una parte esencial de la vida para los españoles. Okay, okay. So, según una encuesta, according to one survey, encuesta is survey. Okay. According to, según is according to. So, according to a survey, los jóvenes españoles son los que más se divierten de Europa. So, they are the one who like enjoy most in Europe. Okay. Divertirse es una parte esencial de la vida para los españoles. So divertirse is an essential part of people Excuse me, living sir. in Spain. Ah, Excuse me, sir. Excuse me, yes, sir. yes, Is yes. divertirse, is it a reflexive noun? Yeah, it is reflexive. It is reflexive verb, right? Okay, thank you. Divertirse is reflexive Verb, verb. sorry, yes. Ah, okay. ओके तो लैटिन अमेरिका का भी दिया हुआ है नीचे. ओके, सूर्य अमेरिका का, तो आप लोग उसको भी पढ़ सकते हैं और वहाँ पे भी जान सकते हैं कि व्हाट लाइक यूथ इन लैटिन अमेरिका इज डूइंग, ओके, फॉर एंटरटेनमेंट. ओके, Yes. तो आप लोग को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, वो वाला चीज क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके. सर मुझे कल Yes, की sir. और आज की क्लास की नोट्स चाहिए होंगे. हाँ हाँ हाँ, मैंने वही बताया अभी, क्योंकि मैं क्लास पढ़ाते वक्त थोड़ा एडिट करता हूँ ना, तो वो होता है क्या, ऊपर नीचे हो जाता है, तो मैं एक बार देख लूंगा उसको अच्छे से, कोई वो मिस्टेक्स ना हो, और फिर मैं आप लोगों को भेज दूंगा यस सर. क्लास का नोट्स. तो मैंने आज, चिराक्षा आप थे पूरे क्लास नो में क्या? सर, मैंने अब ओके भी ज्वाइन किया है बस आपसे बात करने के लिए. ओके ओके. सो ये देखिए, ये आज हम लोगों ने सारा क्लास का नोट्स, मैं ये क्लास में आज यही किया है हम लोगों ने, तो ये हम लोग शेयर कर देंगे, ठीक है? ओके सर. ओके, तो ओके, फिर आप लोग को आईओपी डीओपी में कुछ और पूछना है, उसमें कुछ प्रॉब्लम रह गया आप लोगों को? नहीं सर, क्लियर है और प्रैक्टिस कर रहे हैं. हाँ, प्रैक्टिस ओके. की जरूरत है उसमें. यस. हाँ, सो हम आप लोग नेक्स्ट क्लास तो आप लोगों का होगा तन्वीश्री मैम के साथ, तो आप लोग उनके साथ आगे का जो है बियोग्राफियाज के आगे वाला पार्ट करेंगे. ओके, तो आप लोग को और भी जो क्वेश्चंस होगा तो आप लोग वो उधर थोड़ा पूछ लेना, या ग्रुप में भी पूछ लेना, या ईमेल भी हाँ कर सकते हो आप सर, मुझे. सिर्फ एक बात बतानी थी कि आपने बोला था कि कुछ 2-4 सेंटेंसेस पास्ट में लिखी अपने बारे में, तो मैंने ऐसे 2-3 लिखे हैं. सिर्फ आप ये बताइए कि वो सही है कि नहीं. ओके ओके, आप बताइए. हाँ सर, हम लोग भी मैं पढ़ होमवर्क किए हुए हैं. मैं पढ़ सकती हूँ उसको. हाँ 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 हाँ, तो मैं आमो सीमा, ये पहला सेंटेंस तो ठीक है, माय नेम इज सीमा. हाँ, मेरे उसी का. फिर मैं नासी ए नॉर्ते इंडिया. नासी होगा ना, मे नासी. हाँ, मे नासी नहीं होगा ना, नासेर होता है ना वो, सिर्फ वो रिफ्लेक्सिव. तो नासिर का फिर सर फर्स्ट पर्सन क्या होगा? नास ईआर की जगह पे नासी हो हाँ, जाएगा ना. नासी. हाँ, हाँ, मैं नासी, मैं- तो मैं नासी या यो नासी? जो नासी, यो नासी. वो रिफ्लेक्सिव वर्ब नहीं है नासी. ना. हाँ, हम्म.
तो yo nací en Norte India. Okay. I was born in North India. Okay. Okay. Pero yo viví y estudié en Ciudad Mumbai. Okay. In Mumbai. But I live and studied in Mumbai city. Okay. Okay. ठीक है Fine. ना सर? Fine. Fine. Desde el nacimiento means from a long time, na? Hmm. Me gradué en Ciencias de la Universidad de